Welcome to the channel, everybody. You're watching and listening to Miss Myra Jyoti on Speak Up Hesitations. If you're new to the channel, let me just remind you that I started this channel with a core purpose that I want to spread the importance of communication more rather than silence, because हम इस तरीके से अभी conditioned हो गए हैं कि हम वहाँ पे भी silence perform करते हैं, follow करते हैं जहाँ पे when it's not at all required. So I'm not saying that you just boycott silence. What I'm saying is silence should not be the first option. हमें कोई पिन पॉइंट कर ही नहीं रहा है, हमें कोई इस तरीके से सोचने के लिए कंडीशन कर ही नहीं रहा है। अगर आप में से कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो या फिर स्क्रिप्चर्स में बिलीव करते हो या पढ़े हैं, यू मस्ट नो इट कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो हमें डिक्टेट करते हैं दैट वॉर इज नॉट अ गुड थिंग, बट समटाइम्स इट्स अननेसेसरी थिंग, समटाइम्स वॉर इज अनअवॉइडेबल। मतलब आप हर तरीके से सिचुएशन को मैनेज करके देख लो, अगर वो फ्रेंडली जोन नहीं क्रिएट हो रहा है देन वॉर इज अ नेसेसरी थिंग। और मैं साइलेंस को वॉर की जगह पे रखती हूँ कि अगेन आप हर तरीके से सिचुएशन को मैनेज करके देख लो, हैंडल करके देख लो, खुद को उनकी जगह पे रख के ओवरऑल एनालाइज करके भी देख लो, लेकिन उसके बाद भी वो टॉक्सिसिटी का लेवल सेम है, देन आई थिंक साइलेंस इज द बेस्ट वे टू अवॉइड दैट इल एंड सिक सिचुएशन। बट बिफोर दिस, communicate, have conversation. And I'm specifically targeting family and family environment. You need to understand this reality that how important it is to have a group conversation at home, sitting and talking about each other's likes and dislikes, each other's good behavior and bad behavior, because that's how we can create a healthy family environment. I know and I understand that for some of you, parents are not at all interested. For some of you, you yourself are not interested because nobody is conditioning you to think in that way, right? But I request you, if parents are ignorant, educate them, let them know what is right. And if children are educated, it's parents' responsibility to bring their child or children on the right track. और अगर आप अपने किसी नियरेस्ट या डियरेस्ट फ्रेंड को सफ़र करते हुए देखते हो कम्युनिकेशन में या कॉन्वर्जेशन में, तो प्लीज गाइड देम, बट गाइड देम राइट। यू डोंट नीड टू बी 60 year old टू गाइड समबडी, सीरियसली। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि फाइनली लोगों ने अब आके मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी शुरू की है। they're comfortable to talk about their mental health. हम डिप्रेशन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोचो किसी को डिप्रेशन हो गया, लेकिन हमें कब पता चला? जब वो एक्सट्रीम फेज पे पहुंच गया। हमें तब पता चला जब फिजिकली उनके हाव भाव में, एक्शंस में, रिएक्शंस में वो दिखने लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन जब उस इंसान ने वो डिप्रेशन फील किया होगा, डिप्रेस्ड रहना फील किया होगा या डिसइंटरेस्टेड फील किया होगा, तो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में उसने किसी से क्यों बात नहीं की है? जब उस लो फेज डिप्रेशन को उन्होंने हर घंटे और हर दिन ओवरकम किया होगा, तो उस पर बात करना जरूरी क्यों नहीं समझा? चुप रहना जरूरी क्यों समझा है? ना मैं कुछ इंस्टेंट मैजिक कर सकती हूँ, ना ही आप कुछ इंस्टेंट मैजिक कर सकते हो। सर्वाइवर्स नीड टू टॉक अबाउट इट। What's affecting them? What's bothering them? Are you affected because of the peer pressure? Are you affected because somebody bullied you in sarcastic way? Somebody laughed at you? Somebody made fun of you? Somebody misbehaved with you? Somebody harassed you? What's the real case? Please educate survivors, your loved ones, adults, teen, everybody, children, everybody. That please talk about it. Whatever you're going through, whatever is bothering you, just talk about it. Please condition everybody in such a way that these sufferings are not need to be kept hidden or secret. Communicate. At least your family members should must know what's going on in your life. और अगर family members नहीं, तो at least somebody who's logical, ethical and understands behavior. I'll tell you कि मैं क्यों फैमिली को इतना ज़्यादा टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है या फिर पुरानी जो जनरेशन जिस तरीके से हम बात करते हैं, उनके लिए डिप्रेशन एंजाइटी अभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आज भी मैक्सिमम फैमिलीज में बच्चे अगर चिड़चिड़े होके बात करते हैं, तो पेरेंट्स का जो पहला थॉट निकलेगा ना दिमाग में कि ये बदतमीज है, एक बार में वो सोच ही नहीं सकते इस तरीके से कि कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन क्या आप बात नहीं करके सही कर रहे हो? सबसे बड़ी गलती हम सब ये करते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ना फैमिली के सामने आने ही नहीं देते। कितना कॉमन है जब हम सुनते हैं कि पता है फैमिली की, घर वालों की अगर कोई बात में बुरी लगती है तो हम बाथरूम में जाके रो लेते हैं, लेकिन हम सामने नहीं रोते। क्यों? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? कभी सॉल्व नहीं होगी। दे विल नेवर गेट टू नो दैट कि उनसे कुछ गलती हुई है। उन्हें कैसे पता चलेगा दैट दे डिड समथिंग रॉन्ग?
जिस तरीके से पेरेंट्स हक से बोलते हैं ना कि ये गलती हुई है, इसे दोबारा मत करना, उतना हक खुद भी रखो। ये समझना बिल्कुल बंद कर दो कि पेरेंट्स से गलती कैसे हो सकती है, फैमिली से गलती कैसे हो सकती है। अरे हम तो नादान थे, लेकिन आपको तो पता होना ही चाहिए था। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी। जितना मुश्किल सोसाइटी को कन्विंस करना है, उतना ही मुश्किल फैमिली को कन्विंस करना, समझाना हो जाता है। वो आपके कुछ भी लगने के साथ साथ सबसे पहले समाज का हिस्सा भी है। तो रखो उतना हक, लेट देम नो व्हेन यू गेट अफेक्टेड कि आप ये दोबारा मत करना, क्योंकि ये चीज़ हमें पसंद नहीं आई। जितने हक से वो बताते हैं ना कि वी गेट अफेक्टेड, उतने हक से आप भी बताओ दैट यू गॉट अफेक्टेड। Yes, again, the way of communication always matters from the both side. Bond दोनों तरफ से create होगा. So the point and conclusion is educate people around you, condition people around you that आप बोलोगे तो ही पता चलेगा, आप बोलोगे तो ही solution निकलेगा. But do not forget to follow the right choice and actions. I hope this video is educative. I hope this video is informative. I hope this video is helpful. Thank you so much for your patience and see you in the next video.